Kepler's laws. Students, do you know? Planetary motion had been observed by astronomers since ancient times. Before Galileo, all observations of the planet's positions were made with naked eyes. By the 16th century, a lot of data were available about planetary positions and motion. Sir Johannes Kepler studied these data. He noticed that the motion of planets follows certain laws. He stated 3 laws describing planetary motion. Let's study these laws one by one. So Kepler's first law, it states that the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. The elliptical orbit of a planet revolving around the sun is shown in the figure. The position of the sun is indicated by S. Kepler's second law. The line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. AB and CD are distances covered by the planet in equal time. That is, after equal intervals of time, the positions of the planet starting from A and C are shown by B and D respectively. The straight lines AS and CS sweep equal areas in equal intervals of time. That is, area ASB and area CSD are equal. Kepler's third law. The square of the period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. Thus, if r is the average distance of the planet from the sun and t is its period of revolution, then t square is directly proportional to r cube. That is, t square upon r cube is equal to constant, say k, where k is the constant of proportionality. Kepler obtained these laws simply from the study of the positions of planets obtained by regular observations. He had no explanation as to why planets obey these laws. Children, do you know? An ellipse is the curve obtained when a cone is cut by an inclined plane. It has 2 focal points. The sum of the distances to the 2 focal points from every point on the curve is constant. F1 and F2 are 2 focal points of the ellipse shown in the figure. If A, B and C are 3 points on the ellipse, then distance AF1 plus distance AF2 is equal to distance BF1 plus BF2 is equal to CF1 plus CF2. Students, now watch one more video to understand Kepler's laws. So enjoy watching this video. तो हम स्टडी करने वाले हैं केप्लर्स लॉ के बारे में। केप्लर्स लॉ वे गिवन बाय ग्रेट साइंटिस्ट केप्लर। केप्लर ऐसे तो बहुत पुराने साइंटिस्ट हैं, देखा जाए तो न्यूटन तो खुद एक पुराने साइंटिस्ट है, लेकिन उनका फिजिक्स पे इतना ज़्यादा इंपैक्ट है कि हम क्या बात करें उसकी। उसके पहले गैलीलियो आए थे, जिनको फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है, क्योंकि ही वाज परहैप्स द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन फिजिक्स। उससे भी पहले के साइंटिस्ट हैं केप्लर। केप्लर के बारे में खास बात यह है कि ही वाज एक्चुअली ऑब्सेस्ड विद स्पेस। रात भर ये स्पेस की तरफ देखा करते थे, स्काई की तरफ देखा करते थे और प्लैनेट्स और स्टार्स को स्टडी करते थे। इन्होंने बहुत सारे टेलीस्कोप्स बनाए थे जिनके हेल्प से वो प्लैनेट्स और स्टार्स को स्टडी करते थे। इनफैक्ट इनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम स्काई की तरफ देखते हुए ही गया है। इनफैक्ट इनकी वाइफ बोला करती थी कि टेलीस्कोप इनकी सेकेंड वाइफ है। इनफैक्ट बोला करती थी कि टेलीस्कोप फर्स्ट वाइफ है, मैं सेकेंड वाइफ हूँ। तो एनीवे स्टूडेंट्स, तो पॉइंट ये है कि इन्होंने सोलर सिस्टम को काफ़ी स्टडी किया है। उसके बेसिस पे इन्होंने 3 लॉज दिए जिनको हम केप्लर्स लॉ के नाम से जानते हैं, और आज हम उनको स्टडी करने वाले हैं। सो केप्लर्स फर्स्ट लॉ, तो आपको तो पता ही है कि जो सोलर सिस्टम है उसमें प्लैनेट सन के अराउंड इस तरह से घूमते। तो केप्लर ने यह बोला कि प्लैनेट्स का जो पाथ है सन के अराउंड वो इलिप्टिकल है। क्या बोला उसने? कि प्लैनेट्स मूव अराउंड सन इन इलिप्टिकल पाथ।
जैसे एक पर्टिकुलर प्लैनेट की हम बात कर ले तो उसने बोला कि देखो ये सन है और प्लैनेट जो है उसके राउंड घूमता है और इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात बोली कि सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ इलिप्स। देखो शायद ये बात आपको थोड़ी कम समझ में आ रही हो, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगी। ये देखो सर्किल का एक सेंटर होता है, वैसे इलिप्स जो होता है ना उसमें ऐसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगर उसमें से एक पॉइंट की हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोकस। फोकस जो है एक सिंगुलर वर्ड है, प्लीज ध्यान देंगे। और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोकाई। फोकाई जो है प्लूरल टर्म है, तो मतलब हम बोलेंगे टू फोकाई वन फोकस। समझ लो, फोकस सिंगुलर, फोकाई प्लूरल। तो केपलर ने बोला कि देखो जो प्लैनेट है वो तो इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, उस इलिप्स के दो फोकाई होंगे, ठीक है, एक ये। सन किसी एक फोकाई पे लोकेटेड होता है, जैसे कि यहां पे हमने इसको यहां पे लोकेटेड दिखाया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यही था केपलर्स का फर्स्ट लॉ, बहुत ही सिंपल कि प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं और सन जो है वो इलिप्स के एक फोकाई पे होता है। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। नाउ केपलर्स सेकंड लॉ। तो केपलर ने बोला कि देखो प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड घूम रहा है, सन को आप ओरिजिन ले लो और प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर बना लो, तो ये एरो भी आपको घूमता हुआ दिखाई देगा प्लैनेट के साथ साथ। अब किसी टाइम में मान लो कि प्लैनेट यहां पे, अब आप एज्यूम करो एक टाइम इंटरवल t0, तो इस t0 टाइम में प्लैनेट यहां से यहां आ गया। तो जब प्लैनेट यहां से यहां आ गया t0 टाइम में, तो उसके पोजीशन वेक्टर ने आप देखो एक एरिया स्वीप किया है जो यहां पे शेडेड है। सपोज करो उस एरिया को बोल लेते हैं a1, उसकी जो वैल्यू है। अब थोड़ी देर बाद की बात करते हैं तो उस टाइम पे हो सकता है कि प्लैनेट यहां पर हो, और फिर से वंस अगेन आफ्टर t0 टाइम वो थोड़ा आगे चला गया होगा। अब फिर से इसके पोजीशन वेक्टर ने कुछ एरिया स्वीप किया है जो यहां पे शेडेड है, सपोज उसको हम a2 बोल देते हैं। तो केपलर ने बोला कि a1 और a2 बराबर होंगे। तो केपलर का कहना था कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर है वो सेम एरिया स्वीप करता है, चाहे आप प्लैनेट की जर्नी कहीं पर भी देखो। जैसे सपोज करो किसी टाइम पे हो सकता है प्लैनेट यहां पर भी, तो फिर t0 टाइम बाद वो यहां आ गया होगा और उसके पोजीशन वेक्टर ने जो एरिया स्वीप किया है, जो शेडेड एरिया है यहां पे, अगर वो a3 है तो a1 इक्वल्स टू a2 विल बी इक्वल्स टू a3। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं यहां पे केपलर सेकंड लॉ क्या, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहां पर आप एक और टर्म भी डिफाइन कर सकते हो जिसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। क्या होता है एरियल वेलोसिटी? एरिया स्वेप्ट डिवाइड बाय टाइम। जैसे कि इस केस हम लिख सकते हैं उसको a1 डिवाइड बाय t0। तो बड़ा सिंपल सा है सेकेंड लॉ भी। नाउ स्टूडेंट्स टाइम फॉर केपलर्स थर्ड लॉ। तो आप देखें ये जो इलिप्स है उसमें ये जो लाइन है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन अगर हम इस तरह से बनाए तो उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। फिर ये जो आधी लेंथ है मेजर एक्सिस की उसको जनरली a से डिनोट करते हैं, और ये जो आधी लेंथ है माइनर एक्सिस की उसको b से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू 2a, राइट, एंड माइनर एक्सिस इज इक्वल्स टू 2b। सही बात है। अब एक टर्म होता है यहां पे टाइम पीरियड, जिसको जनरली t से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है आप समझ ही रहे होंगे कि वो टाइम है जिसमें एक प्लैनेट एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा सन के। जैसे आप बताएं अर्थ के लिए टाइम पीरियड क्या होता है, ये आपको पता होगा, दैट इज एक्चुअली अप्रॉक्सिमेटली 1 ईयर 365 डेज। वैसे अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग अलग हो सकता है, राइट। तो केपलर्स थर्ड लॉ ये बोलता है कि टी स्क्वायर फॉर एनी प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। टी क्या है? उसका टाइम पीरियड, एक रिवोल्यूशन करने का टाइम पीरियड, और ए क्या है वो भी मैंने आपको बताया, दैट इज हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस। अगर आप देखें तो जिसको सेमी मेजर एक्सिस ही बोलते हैं। ए इज सेमी मेजर एक्सिस क्योंकि आधा है ना वो मेजर एक्सिस का, राइट। तो दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ। एक और चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, केपलर के तीनों लॉ तो हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन जो आपको कहीं कहीं पे काम आएगी, देखो प्लैनेट जब यहां पर है तो वो सन के क्लोजेस्ट है, और यहां पर जब है आप देख सकते हो तो वो सन के फारदेस्ट है। तो ये जो पोजीशन होती है प्लैनेट की इसको बोलते हैं पेरीजी, और ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं एपोजी। ये आपको याद रखना चाहिए, कई बार कई जगह पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी।